सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु हिंदी फिल्म संगीत रसिकों एक लोकप्रिय नाम एटले मुख्तार शाह। फिल्म संगीतना कार्यक्रम में एक अग्रेसर कलाकार एटले मुख्तार शाह। व्यवसाय वकील एवं मुख्तारभाई खूब ज नानी उंमरथी संगीत प्रीति धरावे। संगीत अने कला प्रत्येनो अनुराग कोण जाणे क्यांथी शरू थयो, बस ए यात्रा अविरत चालू ज रही। पण तेमनी स्टेजनी शरूआत कार्यक्रमना संचालक तरीके रही। एक एंकर पर्सन तरीके पण उम्दा कामगीरी। एनी एनाउंसर को, एंकर पर्सन को के उद्घोषक जे कहो ते, पण संगीतना कार्यक्रम में मीठी भाषा उर्दू में ते सरस संचालन करे। तेमनी स्टेज प्रतिभा अने व्यक्तित्व साथे वणाई गयेली शालीनता कदाच आ मधमीठी जुबा उर्दूना कारणे हशे एवुं मानवुं रह्युं। अनेक गायक कलाकारों, ऑर्केस्ट्राना वादकों, एंकर पर्सन के श्रोता के दर्शक होय एनो अढळक प्रेम पाम्या आपणा मुख्तार शाह। तेमनी सुंदर शालीन अने विवेकयुक्त भाषा अने वर्तणूकना कारणे फेसबुक पर पण तेओ सतत कार्यवाही रहीने मित्रोमां कला पण वहेंचता रहे छे। आपणे तेमने हर हमेश माणीए छीए। विश्वना कोईपण खूणामां होय, फिल्म इंडस्ट्रीना व्यक्ति होय कि विदेशना कोई कलाकार होय, एनी मुलाकात मुख्तार शाह साथे होय अने आपणे एने फेसबुक पर पण एटली ज माणीए छीए। आओ आ कार्यक्रमनी शरूआत लताजीनुं विश्वमां एक गूंजतुं नाम, ए अवाजने पूरा विश्व में पहोंचाड्यो एवा प्रसिद्ध अपना नीलुबेन दवेना कंठे फिल्म सरस्वती चंद्रनु गीत ने माणीए। सावदन चंचल चितवन धीरे से तेराए मुस्काना। चंदन सावदन चंचल चितवन धीरे से तेराए मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों। हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सावदन चंचल चितवन।
2000મો શો પૂરો કરી આજે એક નવા સોપાન તરફ મુખ્તારભાઈ આગળ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપ સૌના આશીર્વાદની અને શુભેચ્છાઓની ખૂબ જરૂર છે. સહૃદયી માણસો સંગીતને માણે. સંગીત એ આત્માનો ખોરાક, પરંતુ એ ખોરાકને પચાવવાની સૌથી પહેલી તાતી જરૂરિયાત. અને એટલે જ આવા સહૃદયી વ્યક્તિને માણવા માટે અને એની એક યજ્ઞ જેવું જીવન, સંગીતની યાત્રામાં આપણી સાચી આહુતિ આજે આપણે આપવા ભેગા થયા છીએ. ઉજવણીના પ્રસંગને ઉંબળકાભેર માણવો છે. ગુજરાતનો આજે એક દબદબો પ્રસંગ બની રહેવો જોઈએ. આજની આ સાંજ અને આવી રહેલ રાત્રિ એ બેની વચ્ચેની પાતળી ભેદ રેખામાં સંગીતમાં આપણે પરોવાઈ જવું છે. નિમિત્ત બન્યા છે મુખ્તાર શાહ. મુખ્તારજીનો પરિચય આમ તો આપ સૌને છે, પણ મુકેશજીનો એક અવાજ એટલે મુખ્તાર શાહ એવું આપણે માનીએ. ઉત્કૃષ્ટ ઉત્તમ ગાયકી, ગુજરાતનો એકમાત્ર કલાકાર કે જે મુંબઈના સંગીતના તમામ શોમાં મુકેશજીના અવાજની જ્યારે જરૂરત પડે છે ત્યારે ત્યાં માત્ર મુકેશજીના પર્યાય એટલે મુખ્તાર શાહ તરીકે રજૂ થાય છે. આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈએ આ વાતને. ગૌરવ છે ગુજરાતને. વિકાસશીલ ગુજરાતમાં સંગીતથી એક સમાજને ધબકતો રાખવા મુખ્તારજીનો આ યાત્રા પ્રયાસ સતત સફળ નીવડતો રહ્યો છે. આપને યાદ કરાવું કે ઉદ્ઘોષક અને એન્કર તરીકે વર્ષો પહેલાં, આમ તો નાનપણથી સંગીતનો જીવ, વ્યવસાય વકીલ અને આજે પણ એટલા જ વ્યવસાય વકીલાતમાં પણ. પરંતુ આજે પુના હોય તો કાલે મુંબઈ હોય, અને 2 દિવસ પછી એ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે હોય, વળી પાછો ટાગોર હોલનો શો હોય, અને આવતીકાલે રાત્રે ફરી પાછો ગુજરાતના કોઈ જગ્યાએ શો હોય. આવો એક પગ સંગીત, એક પગ પોતાનો સંસાર, સમાજ અને જીવન, અને છતાંય ઉમદા વ્યક્તિત્વ કેવું આપ સૌની સાથે નિખાલસતાથી, સરળથી અને શાલીનતાને માણતા એવા મુખ્તાર શાહને આપણે ચોક્કસ સતત યાદ એટલે રહે કે આટલી નાની વયે વિશ્વને ખૂંદી વળવું અને મુકેશજીના અવાજને ધબકતો રાખવો. 1988થી એ વકીલાતમાં છે, અને 1990માં એ આપણી ક્રિકેટ ટીમ સાથે લંડનના પ્રવાસે સંગીતને પીરસવા નીકળેલા, અને 1985થી બાબરા એન્ડ પાર્ટીમાં એક ગાયક કલાકાર તરીકે પ્રવેશ મેળવ્યો. 1985થી 1999 સુધી અવિરત પ્રોગ્રામ એમણે આપ્યા. જો એ પ્રોગ્રામ જોવા જઈએ તો મારે ને એમની સાથે થયેલી વાતચીતમાં એ ઓછામાં ઓછા 2500 ઉપરાંતના શો તો 1999 પહેલાંના છે. પરંતુ એ પછી એમને એમ થયું કે મુખ્તાર શાહની નાઇટ શરૂ થાય, એક અવાજને ઓળખાય, એક માણસની પ્રસિદ્ધિ, એક એની ઓળખ અને આઈડેન્ટિટી ગુજરાતની ઊભી થાય. અને એટલે જ એમણે એ જે અવિરત યાત્રાની શુભ શરૂઆત કરી એ ગઈ મુકેશ ફેન ક્લબના આ જ ઓડિટોરિયમના આ પ્રોગ્રામનો હું પોતે સાક્ષી. આપમાંથી ઘણા બધા પણ એ પ્રોગ્રામને માણ્યો હશે, અને 2000મો શો હતો. મનુષ્યને મળેલા એક જીવનમાં આટલી નાની વયે પોતાનું જીવન જીવી અને સાથે સંગીતની યાત્રા કરવી બહુ જ અઘરી વાત છે. અને એક માલિકે, પર્વતદિગારે, ઈશ્વરે, ભગવાને આ શુભેચ્છા આશીર્વાદ સાથે મુખ્તાર શાહને આ પોતાના જીવન યજ્ઞમાં સતત આગેકૂચ કરતા પ્રેરણાબળ પૂરું પાડ્યું છે. કાર્યક્રમના બીજા ગીતમાં હું આમંત્રું છું કોશાજી પંડ્યાને. નીલુબેન દવે અને કોશા પંડ્યા આ બંને ગાયિકાઓથી પૂરું ગુજરાત
ગુજરાત બહારના રાજ્યો અને વિદેશના એ આપણા અલગ અલગ દેશો પણ પરિચિત છે. બંને ગાયિકાઓએ મુખ્તાર શાહની સાથે ખૂબ પ્રોગ્રામો કર્યા છે અને એટલે આજે આ 2000મો શો પૂરો કર્યા પછીના સાક્ષી બનવા માટે આ બંને ગાયિકાઓને ઉપસ્થિત કર્યા છે. કોશાબેનને કહીશ, કભી કભી ફિલ્મ છે 1976નું, સંગીત ખય્યામનું છે ને અભિનય આપ સૌ જાણો છો અમિતાભજી. ગીતને માણીએ. મુખ્તાર શાહની આ સંગીત યાત્રાની આવો
આપણે એક સરસ મજાની નાની ફિલ્મથી એની ઝલકને માણીએ. संगीत जिंदगी के अंधेरों को उजाले में बदल देता है. जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं वहां संगीत बोलता है. पूरे विश्व की एकमात्र आम भाषा आखिर संगीत ही तो है. भारतीय फिल्म संगीत में ये सारे गुण हैं. आज भारतीय फिल्म संगीत हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू के साथ यूं जुड़ा है जैसे आकाश के संग नीला रंग, जैसे समंदर और लहरें. यानी कि एक की कल्पना दूसरे के बिना करना असंभव है. पिछले लगभग 80 से भी ज्यादा वर्षों में भारतीय फिल्म जगत ने एक से एक बेहतरीन गायकों को जन्म दिया. इन नायाब हीरों में से एक कोहिनूर हुए श्री मुकेश चंद माथुर. मुकेश के गीतों में वो सहजता थी, वो कोमलता थी, वो कर्णप्रियता थी, वो पवित्रता और ठहराव जिससे राजा हो या रंग सभी प्रभावित थे, हैं और सदा रहेंगे. मुकेश इज अ लेजेंड और लेजेंड्स केवल एक ही बार बनते हैं. लेकिन उस लेजेंड को हूबहू अगर किसी ने दोबारा पुनर्जीवित किया है तो वो नाम है मुख्तार शाह. मुकेश और मुख्तार जैसे नाम में समानता है, ठीक उसी तरह न केवल उनकी आवाज, उनकी मधुरता, सुरीलापन, विनम्रता, बल्कि श्री मुकेश चंद माथुर की शख्सियत के हर पहलू को आपने अपने अंदर उतार लिया है. और आज पिछले 25 वर्षों से भी अधिक स्वर्गीय मुकेश जी की आवाज को लोगों के दिलों में जिंदा रखा है. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं मुख्तार शाह साहब के ऑफिस, जहां पर कि लॉ और म्यूजिक दोनों का समन्वय है. कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते. मगर ठहरिए दोस्तों, एक बेहतरीन गायक होने के अलावा मुख्तार शाह एक एडवोकेट भी हैं. कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और इस बात को श्री मुख्तार शाह से बेहतर कौन जानता है भला. अहमदाबाद में जन्मे और म्यूनिसिपल स्कूल बापू नगर में पढ़े मुख्तार शाह को यूं तो बचपन से ही संगीत का शौक था, पर साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की रीतियों के अनुसार उन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया और 1985 में अपना सिंगिंग करियर शुरू करने के साथ ही साथ ग्रेजुएट होने के बाद LLB पास किया और वकालत करने लगे. मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था. अपने शुरुआती दिनों में आपने शौक से एक अनाउंसर की भूमिका निभाई, मगर देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में मुख्तार शाह एक अच्छे सिंगर के रूप में पहचाने जाने लगे. बस फिर क्या था, भारत के विभिन्न शहरों और विश्व के कई देशों के टूर्स करने लगे, जिनमें से प्रमुख हैं इंग्लैंड, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, यूरोपीय देश, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और बहरीन. धीरे धीरे विदेशों के दौरे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से लीगल प्रोफेशन और संगीत के बीच आपने संगीत को ही प्रायोरिटी दी.
आपने 13 देशों में 50 से ज्यादा टूर्स किए हैं तथा भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल से कई कलाकारों के 100 से भी ज्यादा ग्रुप म्यूजिकल शोज करने के लिए विदेश भेजे हैं। नवरात्रि के दौरान रास गरबा के शोज भी 1992 से लगातार यूके और साउथ अफ्रीका में करते रहे हैं। 1996 में लेस्टर यूके में प्रिंसेस डायना की याद में आपने 2500 से भी ज्यादा लोगों के सामने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 1998 में लंदन के लॉर्ड मेयर ने मुख्तार जी के गाने से प्रभावित होकर उन्हें बेस्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा। इनके अलावा इस संगीतमय सफर के दौरान ढेर सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले, जैसे कि 1991 में किवानीज क्लब केन्या अप्रिसिएशन अवार्ड, 1995 में कनाडा टोरंटो यूनिक शो ऑर्गेनाइजर अवार्ड, 1998 में दुबई मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, 1998 में लंदन लॉर्ड मेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड, 1999, 2003 एंड 2012 में साउथ अफ्रीका बेस्ट सिंगर एंड एंटरटेनर अवार्ड, 2006 में मोजाम्बिक टैलेंटेड सिंगर अवार्ड, 2007 बोत्सवाना बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। अपनी मुख्तार शाह नाइट्स के बारे में वो बताते हैं कि और 99 में हमने मुख्तार शाह नाइट की शुरुआत की और पहला हमारा जो प्रोग्राम था वो हमने नवसारी में, और यहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई। और ऑलमोस्ट हमने 2008 में 1000 प्रोग्राम्स हमने कंप्लीट किए सक्सेसफुली, और उसके बाद शोज़ भी काफ़ी बढ़ गए। अभी रिसेंटली अब हम लोग बहुत नज़दीक में 2000 शो पूरे करने जा रहे हैं, तो अगेन एक बिग सेलिब्रेशन करेंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि 2008 टाउन हॉल अहमदाबाद में एक ऐसा शो किया जो लगातार 9 घंटों तक चला और उसमें 110 गाने गाए गए। आपने फिल्म जगत के दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स जैसे कि कविता कृष्णमूर्ति, बप्पी लाहिरी, सोनू निगम, सुरेश वाडकर, अमित कुमार, शान, सुदेश भोसले, शारदा जी, पूर्णिमा ठाकुर, उषा टिमोथी के अलावा कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ फॉरेन टूर्स किए और कंधे से कंधा और सुर से सुर मिलाकर शोज किए हैं। यही नहीं, आपने मुंबई वासियों के दिलों में तो खास जगह बनाई है। म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्लेबैक सिंगर्स, बिग शो ऑर्गेनाइजर्स के शो में मुकेश जी के गीतों को प्रेजेंट करना हो तो सबकी पहली पसंद है मुख्तार शाह। 24 अगस्त 2013 एक ऐसा दिन था जब संगीतकार कल्याण जी की पुण्यतिथि पर आपने मुंबई के भाईदास हॉल में कल्याण जी के सुपुत्र विजू शाह के ऑर्केस्ट्रा के साथ 20 गाने मुकेश जी के गाए हुए अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के समक्ष प्रस्तुत किए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 25 सालों में श्री मुख्तार शाह ने अपने संगीत में सफर में अब तक 16 ऑडियो एल्बम्स, गुजराती फिल्मों में प्लेबैक और टी सीरीज भजन एल्बम को हेमंत चौहान के साथ अपनी आवाज और अंदाज से सजाया है। ये पूछने पर कि आप पिछले 27 वर्षों से इस फील्ड में हैं, कोई ऐसा वाक्या जो आपको दिल तक छू गया हो, इस बात पर मुख्तार शाह कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं अपने इस मुकेश जी के गानों की जो जर्नी है उस दौरान में, लेकिन एक सबसे ज़्यादा मुझे जो याद आता है एक एक्सपीरियंस वो ये रहा कि एक जेंटलमैन हैं जिन्हें अनफॉर्चुनेटली कैंसर की बीमारी थी और वो काफ़ी उससे परेशान भी थे, और उन्होंने जब वो मुझसे मुलाकात हुई तब उन्होंने मुझे ये बताया कि एक टाइम ऐसा था कि मैं सोच रहा था इससे परेशान हो के अपनी बीमारी से कि शायद सुसाइड कमिट करूं। उसी दौरान कुछ उनके दोस्तों के इंसिस्ट करने पर वो एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आए, और वो मुकेश जी के गाने जो उन्होंने सुने उसके बाद से यूँ समझ लीजिए कि पूरा एक ट्रांसफॉर्म हुआ और वो ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव देखने लगे और इतने हैप्पी हुए कि उनकी वो बीमारी से रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई। और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मुकेश जी के सिर्फ गाने हैं, ये संगीत है मुकेश जी का जिसने मुझे एक नया जीवन दिया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल अपनी सच्ची निष्ठा, कड़ी मेहनत, मृदुल भाषी स्वभाव और एक अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व
ये सारे गुण आज मुख्तार शाह को न केवल सभी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से बिल्कुल अलहदा चमकाते हैं, वरन साथ ही साथ सफलता की हर ऊंचाई को छूने में कामयाबी दिला रहे हैं। मुख्तार शाह ने इतिहास तब रचा जब गुजरात में पहली बार मुकेश फैंस क्लब की शुरुआत उनके सुपुत्र श्री नितिन मुकेश द्वारा करवाई और उसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं। मुख्तार भाई ऐसा मानते हैं कि मुकेश जी के गीतों के जरिए लोगों का मनोरंजन करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और चाहते हैं कि संगीत का रंग चाहे कितना ही बदल जाए, मगर आने वाली पीढ़ी को मुकेश के गीत इसी तरह से आनंद दिलाते रहे। दोस्तों, इस संगीतमय यात्रा में इनका कदम दर कदम साथ निभाया है उनकी धर्मपत्नी शमशाद, उनकी सुपुत्री सना एवं सुपुत्र साहिल और उनके घनिष्ठ मित्र तथा भाई श्री बिंदेश त्रिपाठी ने। दुनिया भर के संगीत प्रेमियों और खास करके मुकेश जी के चाहने वालों के लिए मुख्तार शाह का क्या संदेश है? मुकेश जी के गाने, उनके साथ साथ उस दौर के जितने भी गाने वाले थे, उन सब के गाने बहुत डिवाइन हैं, बहुत रूह को सुकून देने वाले हैं। तो उन संगीत को सुनने से मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लोगों से ऐसे मिलता हूँ जिन लोगों ने ये कहा है, जो एजेड लोग हैं, तो वो लोगों ने कहा है कि पुराने संगीत के ज़रिए ही हमारी सेहत भी बनी हुई है और हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से खुशी खुशी चल रही है। तो मेरा यही संदेश है कि संगीत में रहें, मुकेश जी के गानों के साथ रहें, खुश रहें, अच्छा संगीत सुने। ये सफर आप सबके प्यार, शुभकामनाओं, दुआओं और आशीर्वाद से अब भी जारी है। खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं। आओ આપણા લાડીલા કલાકાર પૂરા વિશ્વમાં મુકેશજીનો આ અવાજને જગ પ્રસિદ્ધ કર્યો એવા જોરદાર તાલીઓના ગલગલાટ સાથે એ ગડગડાટ એવો ગુંજવો જોઈએ, આપણને સતત યાદ રહે। 2000 શો પૂરો કરનાર લાંબા લાખો ને હજારો દર્શકોને મન મૂકીને મજા કરાવશે એવા આપણા મુખ્તાર શાહ ને આપણી સમક્ષ રજૂ કરતા ખૂબ આનંદ અનુભવું છું। વાહ, મુખ્તાર શાહ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। ઓગણીસો 99 મુખ્તાર શાહ નાઇટની સતત યાત્રા 2000 શોને પૂરા કરવા અને 1999 સુધી 3000 થી 3500 શો કરવા મુકેશજીનો વિશ્વમાં અવાજને ગુંજતો રાખો। એક સંગીતમય યાત્રા આજના કાર્યક્રમના આપણા અતિથિઓને મુખ્તાર શાહને આપ સૌની શુભેચ્છાની જરૂર છે। લાખો હૃદયમાં સ્થાન ધરાવનાર મુખ્તાર શાહ આપ સૌના સહકારથી, આપ સૌની શુભેચ્છાઓ અને માલિકના આશીર્વાદથી
2016 પોતાના પૂરા કરનાર એક વિરલ વ્યક્તિ, સાહજિક, સરહૃદયી, શાલીન અને સરળ, નિખાલસ વ્યક્તિ એટલે મુખ્તાર શાહ. ઓગણીસો 99 નવસારીથી પોતાના પહેલા શોની શરૂઆત કરનાર અને આજે આટલા ટૂંકા ગાળામાં 2000 શો પૂરા કરી આપ સૌને, માલિકને, ઈશ્વરને, પરવરદિગારને વંદન કરતા મુખ્તાર સૌને આપ સૌની શુભેચ્છાઓ. એક જબરજસ્ત લોકચાહના, સંગીતમય યાત્રા, કલા હૃદય એવા મુખ્તાર શાહને આપણે સ્ટેજ ઉપર આવકારતા આપણા સ્થાન ઉપર ઊભો થઈને મારી વિનંતી છે, આપણા સ્થાન ઉપર આપણે ઊભા થઈ હવે એક વિરલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા સંગીત પ્રેમી મુકેશજીનો અવાજ લાખોના હૃદયમાં લોકચાહના, વિશ્વ પ્રવાસ અને 2000 શો પૂરા કરવા બિંદેશભાઈ ત્રિપાઠી મુખ્તાર શાહની સાથે હોય, સંગીતમય જીવન હોય અને સંગીત યજ્ઞમાં આવા કાર્યક્રમમાં આપણને આહુતિ આપવાનો મોકો મળે, અનેરો અવસર છે. મુખ્તારભાઈ, આ સૌના વતી મને એક પ્રશ્ન આપણે પૂછવાનું મન થાય છે કે આપ એક એન્કર તરીકે સ્ટેજ ઉપર આવ્યા, ઉર્દુ ઉપરનું પ્રભુત્વ અને પકડ, ઘણા બધા શો કર્યા, લગભગ 3000 થી 35 શો. આપણે એવું કેવી રીતે થયું કે હું મારો પહેલો શો 1999માં કેમ શરૂ કરું અને કઈ ઉચિત ભાવનાથી? આપ નિખાલસ મને આપણા જ પરિવારજનોને જણાવો. नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण, जय जलाराम, जय माता दी, जय झूलेलाल, और कुछ बाकी भूल रहा हूँ तो याद करना है प्लीज़. जय साईनाथ. आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. आज ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है. कल हमारे 2000 शो जो मैंने 99 में शुरू किए थे उसके ख़त्म हुए और आज 2001 ये प्रोग्राम के एक नया सफ़र हमने शुरू किया है. आप लोगों ने जब कभी भी आपके समक्ष आया हूँ आपने बहुत ही प्यार दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमेशा की तरह मेरे साथ और सभी कलाकारों के साथ बना रहेगा. मैंने गाना शुरू किया था तब स्कूल के ज़माने में, छोटा था जब पढ़ाई करता था तब उन दिनों मुकेश जी का देहांत हुआ था और एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं पल दो पल का शायर हूँ. वो गाना मैं हमेशा स्कूल के कभी भी जो छोटे बड़े फंक्शन हुआ करते थे उसमें गाया करता था. तो वहाँ से ही जो मेरे साथी दोस्त थे, आज उनमें से 2-3 दोस्त यहाँ पर आज मौजूद हैं स्कूल ज़माने के, तो वो सब मुझे मुख्तार की जगह मुकेश कहने लगे और इस तरह से मेरा जो ध्यान है, अट्रैक्शन जो है वो मुकेश जी के प्रति और उनके गानों के प्रति ज़्यादा बढ़ा और इस तरह से ये सफ़र की मेरी सबसे पहले शुरुआत हुई. लेकिन जैसा सुनील भाई ने पूछा कि मैंने अपने नाम के जो प्रोग्राम है वो 99 में करने क्यों शुरू किए, ये बात बाद में करेंगे. लेकिन अभी मैं उस पहले गाने से शुरुआत कर दूं संगीत की, ताकि ये उन सब मेरे स्कूल के दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ गाना जो उन दिनों मेरे साथ थे. फिल्म कभी कभी, मैं पल दो पल का शायर हूँ. धन्यवाद.
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू। अगला इसके बाद जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, मेरी जो शुरुआत हुई, मैंने प्रोफेशनली जो गाना शुरू किया वो 1985 में, और एक बहुत ही मशहूर उन दिनों का ग्रुप हुआ करता था, आज भी उतना ही मशहूर है, बाबरा एंड पार्टी। यहाँ पर आज बाबरा भाई को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन वो इस वक्त इन दिनों अमेरिका हैं, अभी टूर पर हैं शोज़ में, तो आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, तो आज ये सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन उन दिनों उनके जो मैनेजर हुआ करते थे रमेश भाई जरीवाला, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे याद है कि 21 जनवरी 1985 जो मैंने पहला शो प्रेमा भाई हॉल में किया था, अब तो वो हॉल बंद है, और उस दिन इंटरवल के दरमियान में मुझे जिस तरह सब आर्टिस्ट को पेमेंट दिया जाता है, तो रमेश भाई के हाथों मुझे 50 रुपये मिले थे। और आज अभी रमेश भाई मुझे बैक स्टेज आए थे मिलने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आज भी मुझे वो याद है दिन, और उस प्रोग्राम में जो मैंने पहला गाना गाया था, और वो गाना आपको मैं सुनाने चाह रहा हूँ। फिल्म है यहूदी, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना है। दिल से तुझको बेदिली है,
मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। આપ સૌને એક યાદ અપાવું કે 1962-63માં અત્યારે જ્યાં નગરી હોસ્પિટલ છે આંખની એની સામે એક મોટું મેદાન હતું અને મેદાનમાં ઓરિયન્ટ ક્લબે સંગીતનો કાર્યક્રમ રાખેલો અને એ કાર્યક્રમની અંદર મુકેશજીએ આ ગીત ગાયેલું અને આ ગીત 1958નું ફિલ્મ દિલીપ કુમારને આપણે એમાં માણ્યા, સંગીત શંકર જયકિશનનું અને ગીતકાર શૈલેન્દ્ર હતા. એ યહૂદીનું યાદગાર ગીત હતું. આવકારું હવે ફરી એકવાર नीलूजीने, नीलू दवे ने। जी ये जो गाना है अब मैं इसके बाद गाने लगा हूँ। जैसा कि वो फिल्म में भी आप देख रहे थे, मैंने बताया कि 99 में मैंने अपने नाम के जो प्रोग्राम करने शुरू किए, तो यहाँ पर उस बात का जिक्र कर दूँ कि एक मेरे एडवोकेट मित्र हैं गुलाब खान पठान, उनके साथ मैं एक दिन किसी ऑफिस में यहाँ पर गया था। जब से ये मैंने प्रोग्राम्स करने शुरू किए 87-88 में मैंने सबसे पहली विदेश यात्राएं की, वो थी दुबई, अबू धाबी और बहरीन वगैरह में गया। और तब मेरा LLB कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैंने कोर्ट के अंदर लीगल प्रैक्टिस शुरू की 88 में। उसके बाद 2 साल कंप्लीट लीगल प्रैक्टिस की फुल टाइम। लेकिन 90 में हम लोग फर्स्ट टाइम हमें ऐसा मौका मिला कि हम इंडियन क्रिकेट टीम के साथ थोड़ा सा टाई अप करके हम लोग इंग्लैंड गए थे। हमारे एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं जो इन दिनों मेरे अमेरिका के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, श्री नटवर ठक्कर साहब। तो उन्होंने वो टूर ऑर्गेनाइज़ की थी और कपिल देव उनके बहुत मित्र थे। तो तब वो टूर पर हम लोग इंग्लैंड गए साथ में।
और जहाँ हमारे शोज़ होते थे तो वो क्रिकेटर साथ में प्रोग्राम में आते थे शाम को, और वहाँ से फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोग्राम की तरफ रहा और फिर मैं इंग्लैंड काफ़ी टूर्स करने लगा और फिर मैं ग्रुप भी यहाँ से भेजने लगा। वो सब कुछ बहुत चलता रहा, काफ़ी उसमें बिज़ी भी रहा और संगीत का प्रोग्राम यहाँ पर भी करता था, विदेशों में भी करता था। तो ये बात है 98 की। तो तब उनके साथ मैं किसी यहाँ ऑफिस में अहमदाबाद गया था और वो किसी से मुझे मिलवा रहे थे कि इनको पहचानते हो कि इनका नाम मुख्तार शाह है और बहुत अच्छे सिंगर हैं और विदेश में बहुत प्रोग्राम करते हैं। तो वो जो ऑफिसर सामने बैठे थे उन्होंने कहा यार मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि जहाँ इंग्लैंड के अंदर कुमार शानू जी के जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ मेरे प्रोग्राम होते हैं, उनके जिस तरह से प्रोग्राम में ऑडियंस आता है उतना ही ऑडियंस मेरे प्रोग्राम में आता है। बंकिम पाठक यहाँ के बहुत फेमस सिंगर हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी शोज़ इंग्लैंड में किए हैं डिमॉनफोर्ट हॉल में, और वो सारे प्रोग्राम हाउसफुल होते थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि वहाँ इतना ऑडियंस हमारे नाम से जब आता है तो हम अपने ही शहर के अंदर हमको कोई जानता नहीं है। तो तब मैंने सोचा कि मुझे अभी अपने नाम के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, और इस तरह से 99 में हमने ये शुरुआत की थी। और उसका पहला प्रोग्राम मेरे मित्र हैं राजू भाई पटेल नवसारी के, उन्होंने पहला शो मेरा रखा था, जुलाई 30 तारीख थी 99 में हमने पहला शो किया था। तो उस प्रोग्राम में जो पहला ड्यूएट हमने गाया था वो ये वाला था। आज भी मैं उन दिनों को भूलता नहीं हूँ, वो गाने आज भी मेरे दिल के उतने ही करीब हैं। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र बह जानी है, दो घड़ी जी लेंगे, दो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा, जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। बरसता सावन
कर झूमे, कमर बन कर चलो डोले, राहें मोड़े, मेरा संग कहीं पे छोड़े, चुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे। ये दिल कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। આપણી વચ્ચે મુખ્તારભાઈના પોતાના સ્વભાવ, નિખાલસતા, સાલસતા અને એક સરદય માણસને કેટલો મોટો મિત્ર વર્તુળ હોય અને એટલી જ આજે શુભેચ્છા આપવા માટે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છીએ. આપણી વચ્ચેથી આપણા શહેરના પૂર્વ મેયર અસિતભાઈ વોરા. અસિતભાઈ એ પણ એક ઉમદા કલાકાર છે, મુકેશજીનો અવાજ છે. હું એમને સ્ટેજ ઉપર 1 મિનિટ માટે આવકારું છું. અસિતભાઈ, આપ પધારો. અસિતભાઈ મુખ્તારભાઈના બહુ જ નજીકના મિત્ર, સાથી કલાકાર. અસિતભાઈ, આપ શું કહેશો આ પળે? दोस्तों, पहले तो मुख्तार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका सद्नसीब है कि भावनगर में आज से बरसों पहले मुकेश जी के गानों को सही मानों में जिसने न्याय दिया, हमारे सबके प्रेरणा मूर्ति है डॉक्टर कमलेश अवस्थी। उनको कई बार हम मिलते हैं, मुकेश जी की बातें शेयर करते हैं और हमारे लिए फख्र की ये बात है, कितने सालों के बाद अहमदाबाद में भी मुकेश जी के गानों को जो सही मानों में पेश करते हैं, वैसे ही मुख्तार शाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में 3000, 4000, 5000 शो पूरे करके अपना नाम और पूरे अहमदाबाद शहर का नाम पूरे विश्व में वो अपना नाम रोशन करे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर कमलेश अवस्थी हमारे प्रेरणा रहे हैं, उसी तरह से असित वोरा साहब भी मेरे प्रेरणा रूप रहे हैं। और मुकेश जी के गाने आप सब जानते हैं, वैसे तो ये बात किसी से अनजान नहीं है कि मुकेश जी के गाने बहुत ही बखूबी के साथ गाते हैं। हम लोग कई मर्तबा इनके घर पे भी ऐसे प्राइवेटली बैठते हैं गाने एंजॉय करने के लिए। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाकर बहुत अच्छा गाते हैं। कभी 2 बजते हैं, कभी 3 बजते हैं रात के, उसका कोई वक्त नहीं होता। जब मुकेश जी और संगीत और असित भाई गा रहे हों तो उनको सुनना, वो सब गाने नहीं जो आज यहाँ स्टेज से गा रहे हैं, उनसे हट के वो गाने जो हम लोग सुनते हैं, जो थोड़े ऑफ बीट गाने हैं, नॉन फिल्मी गाने हैं। तो असित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा मेरे इस सफ़र के दरम्यान में हमेशा आप आए हैं, आपने आशीर्वाद दिया, आपने प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।